He has earned numerous accolades, including IARPMA Excellence Award and IPMA's Paper Mill of the Year Award. He has pioneered the use of agri-residues for paper production, and his vision and expertise have set new benchmark for sustainability and growth in the sector. I request Mr. Gopalakrishnan to join me on the dais to say a few words. यशोभूमि में लगा पेपरस का 17वां वार्षिक मेला। इस मेले में न्यू इनोवेशंस और इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से और अचीवमेंट में लिया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पर फोकस रहा। रिन्यूएबल एनर्जी में वीडियो कॉन्फ्रेंस श्रीपद नायक केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पेपर इंडस्ट्रीज़ भारत की उभरती अर्थव्यवस्था को बल दे रही है और नवाचार और नए अध्ययन को, रोजगार को बढ़ावा भी दे रही है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और इसमें कई जाने मानी हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें इंडस्ट्रीज़ इनोवेशन और नए योग्यता के आधार पर किस तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उस पर भी फोकस किया गया। द्वारका से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस। I think all of us have to work with confidence, with tremendous amount of optimism, and the way that we can take forward is well within our capacity. Thank you. तकनीक, नेतृत्व और सहयोग एकजुट होते हैं। आज जब विश्व के अनेक उद्योग आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजर रहे हैं, भारतीय पेपर उद्योग दृढ़ता, अनुकूलन क्षमता और सतत विकास का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह क्षेत्र केवल उत्पादन और विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्ता सुधार, नवाचार, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। ऊर्जा, जल और कच्चे माल के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे प्रयास पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रेरणा स्रोत है। विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से जुड़े होने के नाते मुझे विशेष संतोष है कि पेपर उद्योग ने परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड अर्थात पैट योजना के अंतर्गत निर्धारित ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को उत्कृष्ट रूप से प्राप्त किया है। दूसरा, क्योंकि हमारा देश फाइबर शॉर्टेज कंट्री है, हम जो हमारा पेपर देश में बनता है एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे बैगास है, सरकंडा है, सबोज और व्हीट स्ट्रा, राइस स्ट्रा, ये हमारे प्रोडक्ट वेस्ट हैं। और जो पराली लोग जलाते हैं, हम कहते हैं पराली हमें बेचो, खरीद रहे हम साइड पर 3 रुपये किलो खरीद रहे हैं, वहाँ से काटते हैं लेकिन जला देते हैं। तो ये जी। अब इसके बाद ऐसे ही हमारा वेस्ट पेपर में भी बहुत फाइबर शॉर्टेज है, क्योंकि हमारा कलेक्शन ही नहीं है। जैसे डेवलप कंट्री जापान में जितना यूज करते हैं 90% कलेक्ट कर लेते हैं। On this planet which can boast of this kind of sustainability. We all have been talking about sustainability in all industries, but paper industry is really very various. I have been 30 years, it has been 30 years for me into paper industry. For the last 2 years, 3 years, we are seeing for the first time the kind of recognition which this industry is getting now. And why is that? Because of our sustainability aspect, because of our environmental friendliness aspect. And what is that? In sustainability, we are using paper industry is one of those very few industries on this planet which can boast of this kind of sustainability. We all have been talking about sustainability in all industries, but paper industry is really very various. I have been 30 years, it has been 30 years for me into paper industry. For the last 2 years, 3 years, we are seeing for the first time the kind of recognition which this industry is getting now. And why is that? Because of our sustainability aspect, because of our environmental friendliness aspect. And what is that? In sustainability, we are using only 3 kinds of raw material in India today. One is wood, the other one is agricultural residue, that is bagasse and wheat straw, and the third one is recovered fiber. These are the 3 raw material. Coming one by one to each of these 3, wood is 100% grown by farmers in their agricultural fields.
We are not allowed to cut a single tree from a forest. It's totally banned. 100% wood is being procured from the field, agricultural fields. These trees are grown by farmers. These trees are not cut. These trees are harvested. And these are eucalyptus, poplar, casuarina, so several kinds of varieties. Moreover, paper industry has worked so hard in the last 10 years to develop new clones for these trees. And the biggest advantage of these clones are these are fast growing trees. And number two, water consumption is very, very low. Even lower than the conventional crops. So today, farmers are able to harvest their tree crops within 3.5 to 4.5 years. Farmers' income has grown tremendously by पेपर अगर देखा जाए वर्ल्ड ओवर, इंडिया की 13.5% से ग्रोथ हो रही है एनुअल पेपर इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स जो बताया गया, आपने सुना कि 700 से ज़्यादा 900 इंडस्ट्री से आज 200 इंडस्ट्रीज पेपर मिल्स बंद पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी डिसीजंस ऑल दैट व्हिच वी नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे आपने जीएसटी का, इन्वर्टेड जीएसटी का सुना और जो डंपिंग हो रहा है उसका सुना। सो वी हैव टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। इसमें थोड़ा हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा। जैसे कि लग्जरी अपार्टमेंट मानती है गवर्नमेंट, क्या पेपर यूज़ को लग्जरी मानती है कि उसमें 18% और 12%, क्योंकि उसकी चीज़ें बनती है वो 0% पे है, जो एजुकेशन पे आती है, क्या है? सो आई थिंक डेफिनेटली ये कुछ हुआ है उनसे, गवर्नमेंट से मिस हुआ है बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री इज नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट, यू नो इट्स बेसिक प्रोडक्ट, पीपल यूज इन एवरीथिंग। सो आई एम श्योर दिस विल बी एंड दे कीप रिव्यूइंग इट। सो हमारा गुंजाइश है गवर्नमेंट से जब भी नया रिव्यू होगा जीएसटी का, उसमें डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री को वो बेनिफिट दिया, पास ऑन किया जाए। जैसे आज पेपर प्रोडक्ट जो 0% पे है या 5% पे है, पेपर जो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है उसको 18% रख के कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज बड़ा लॉस है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। और इंडियन पेपर को भी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसका सपोर्ट होगा अगर वो जीएसटी रेट कम आ जाए तो। सर इंडस्ट्री में यहाँ पे नया क्या फोकस, क्या है नया इस पे, यहाँ पे फोकस किस पे है बेसिक? इन द शो में डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज पे है। टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे इसको पेपर को कैसे मोर सस्टेनेबल बनाया जाए, मोर एफिशिएंट बनाया जाए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, टाइमिंग कम हो। और जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 20% एग्रो फॉरेस्ट्री है, नॉट फॉरेस्ट। किसान उसे पैदा करते हैं, उनसे हम खरीदते हैं, एज ए क्रॉप वो पैदा करते हैं। बाकी 80% कागज एग्रीकल्चर वेस्ट और रिसाइकिल से बनता है। जो हम सड़कों पे कागज फिट जाता है, जो घरों में इकट्ठा होता है, उससे बनाते हैं। तो बेसिक फाइबर तो वुड से ही आएगा, फॉरेस्ट्री से आएगा, तो उसके लिए भी हम ग्रो कर रहे हैं। तो 80% को रिसाइकिल कर रहे हैं। जहाँ और यूरोप में 100% कागज फॉरेस्ट से बनता है, वुड से बनता है, हमारे यहाँ तो 20% बन रहा है, तो और उसे रिसाइकिल कर रहे हैं। तो अल्टरनेट वर्जिन पल्प का अल्टरनेट तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बार बनाया फिर उससे 10 साल बना रहे हैं। पेपर को जो ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्लास्टिक जैसे क्वालिटी मिली आए, गले नहीं, सड़े नहीं। तो प्लास्टिक का अल्टरनेट केवल पेपर ही हो सकता है। तो पेपर में हम रोज नए केमिकल, विजुअल केमिकल जो हार्मलेस ना हो, उन्हें रोज के रोज इस पेपर इंडस्ट्री में R&D कर रही है और धीरे धीरे प्लास्टिक को अल्टरनेट करने की कोशिश कर रही है।